Dear student, yesterday we have seen heat, electrical energy and power, and we have seen that what is electric power, what is electrical energy. Also we have seen what is the bigger unit of electrical power, that is 1 kilowatt hour. Further we have seen 1 HP is equal to 746 watt. Now today we have to see about the power loss. Now what is power loss? See, the current which is generated at the power station, it has to be brought to the consumer, means it has to be brought to us, okay, at home. Now thing is that when the current is brought, and when current has to be brought from one particular point to our house, they have to brought from the with the help of a transmission cable. So now what will happen? The transmission cable, when it is passed, because of the resistance, there will be a loss of current or power. This loss due to the transmission because of the resistance is called as transmission loss or power loss. Now this transmission loss or power loss has to be reduced. So what has to be done? Today we have to see this. So what they will do? They will bring the current which is generated at one particular point to the transmission cable only, but they will bring this under high potential, high voltage. So when at high voltage the current is brought, the power will not be lost. This is the basic thing. So now if suppose they have to brought at high voltage, so what they have to do? At our house we want only 220 voltage, but the current has to be brought at high voltage. So what they will do? They will use, after bringing at our point, they have to reduce the voltage, they have to decrease the voltage. So the decreasing of the voltage will be done by step down transformer, and increasing of the voltage is done by step up transformer. Regarding this step up and step down transformer, we will study in 7th chapter, that is alternating current. So that we are going to study in detail about the step up transformer and step down transformer. So now here in the first part of the video we have to study about the power loss. This power loss is because of the transmission of the current due to the transmission cable, which will have the high resistance, and because of the high resistance, what will happen? The current which is brought, that current will be converted in the form of heat because of the resistance. So this power loss has to be reduced. क्लियर हो गया? तो पावर लॉस किसे कहते हैं? पावर लॉस, जब भी पावर जनरेट होता है, उस पावर को हमारे घर तक लाने के लिए ट्रांसमिशन केबल यूज़ किया जाता है. तो ट्रांसमिशन केबल से जब आ रहा है करंट, तो वो करंट क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस हीट में कन्वर्ट हो जाता है और वो लॉस होता है. सो दिस ट्रांसमिशन, और दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन लॉस. अभी जनरली क्या होता है? दिस ट्रांसमिशन लॉस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. ट्रांसमिशन लॉस पूरी तरह से ज़ीरो नहीं कर सकते, मगर उसको हम कम कर सकते हैं. तो किस टेक्निक से किया जाता है कम, वो अभी हमको इस टॉपिक में पढ़ना है. तो इसमें क्या किया जाता है? जो करंट है उस करंट को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है. अब हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा? जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पर उसको हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये एक पहला पॉइंट है. और
जब वो आ रहा है अपने घर पे, घर के पास आने के बाद अपने घर में कितना लगेगा करंट अपने पास, 220 वोल्टेज। तो उसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। सो अपने घर में आने से पहले वोल्टेज क्या किया जाता है, कम किया जाता है, 220 वोल्ट के नज़दीक लाया जाता है या 220 वोल्ट लाया जाता है, फिर अपने घर में पावर ट्रांसमिट होता है। सो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से वर्क होता है अभी हमको देख लेता है। सो ये तो मालूम हो गया हमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये दो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं पावर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। अभी ये जो पावर है फ्रॉम द जनरेशन स्टेशन, इसको ट्रांसमिट किया जाता है हाई वोल्टेज पे। ये हाई वोल्टेज पे कौन उसको कन्वर्ट करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करता है। तो अब जनरल फार्मूला हमने कल डिराइव कर लिया था, पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कल हमने डिराइव किया फार्मूला हमने देख लिया था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वेयर I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है पावर के केस में। तो अभी यहाँ पर क्या करंट कन्वर्ट हो जाएगा, वो इक्वेशन PC इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी। व्हाट इज PC, पावर डिसिपेटेड इन द ट्रांसमिशन केबल। What is RC? RC is the resistance of the transmission cable. What is I? I is the current flowing in the transmission cable. I क्या है, current flowing in the transmission cable है। RC क्या है, resistance of transmission cable। PC क्या है, power dissipated in the transmission cable. So इसको दे देंगे equation 1. Okay. Now we'll consider that let P be a power to be delivered from the cable of resistance R. अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि P be a power जिसको हमको डिलीवर करना है केबल से, उस केबल का रेजिस्टेंस कितना है, R है। Let V be the potential difference across the resistance R and I be the current flowing through it. So P is equal to V into I. So क्या होगा इसका फार्मूला, P is equal to V into I। पावर का फार्मूला ऑलरेडी हमने देखा है, इसको दे देंगे इक्वेशन। फ्रॉम दिस I is equal to what, P by V। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 is what, PC is equal to I square RC. Equation 2 is I is equal to P by V. Substituting the value of equation 2 in equation 1. So what we'll get, PC is equal to P square by V square into RC. PC is what, power dissipated in the transmission cable, power loss. PC indicates क्या कहते हैं, PC क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर लॉस। P क्या है, पावर, V क्या है, वोल्टेज, RC क्या है, resistance of transmission cable. So from this relation, equation 3, what we got, from this relation what we conclude, power loss is inversely proportional to voltage. तो what it means, पावर लॉस हमें कम करना है, तो पावर लॉस कम करना है, तो पावर लॉस कैसे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V का वैल्यू अगर मैंने ज़्यादा कर दिया, अभी ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, V का वैल्यू अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिकली PC का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा कम, बिकॉज मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, V स्क्वायर इज इन डिनोमिनेटर, V का वैल्यू मैं जितना कम करता हूँ, ओके, V का वैल्यू जितना ज़्यादा करूँगा, ध्यान से सुनो, नॉट कम, V का वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हाइयर पोटेंशियल पे लाना पड़ेगा। तो इफ V का वैल्यू हाइयर वैल्यू हो गया तो PC का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कंक्लूड,
द पावर ट्रांसमिशन लॉस और पावर लॉस जो है वो कम कब होगा, जब हम हाइयर वोल्टेज पे करंट फ्लो करेंगे तब। सो इनिशियली जो हमने कंसिडर किया था कि जो पावर लॉस है वो कैसे कम करेंगे, अगर हम करंट को हाइयर वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया। हाइयर वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कैसे हमने बताया वो, यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है, पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू आर सी। तो वी इज वॉट, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा उतना पावर लॉस कम होगा। सो दिस इज दिस इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कंक्लूड, दैट पावर लॉस ईपीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो इनिशियली जो हमने कॉन्सेप्ट रखा था कि जो पावर लॉस है वो किस वजह से कम होगा, हाइयर पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेंगे तब होगा। सो वो इस तरह से हमने ये इक्वेशन मुझे मिल गया। तो पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू आर सी। सो फ्रॉम दिस रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर लॉस के केस में। क्लियर हो गया। सो टुडे व्हाट वी हैव स्टार्टेड, फास्टली एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट आज हमने पावर लॉस के बारे में पढ़ा। कल हमने इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके बारे में पढ़ लिया था। सो व्हाट इज पावर लॉस, पावर लॉस इज नथिंग बट इट इज़ द पावर जनरेटेड विच इज at the station must be transmitted to the consumer through a transmission cable, then there is a power loss in the transmission cable due to resistance। रेजिस्टेंस रहने के कारण क्या होगा, पावर लॉस होगा। मतलब जो पावर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण उसका हीट में कन्वर्ट होगा एंड दैट विल बिकम ए पावर लॉस। और उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन लॉस कहेंगे। अभी ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए व्हाट the scientists have found out the concept, they found out that the power or the current which has to be transmitted, it has to be transmitted at high potential। high potential पे अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। सो ट्रांसमीटर एंड पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज कर देता है, किसका, करंट का। और जैसे ही वो कंज्यूमर के पास आएगा, अपने पास, अपने घर के पास आएगा, तो उसका वोल्टेज हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। तो जो ड्रॉपिंग ऑफ वोल्टेज है वो कैसे किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को कम करेगा रिसीविंग एंड पे। तो हम देखते हैं कि हर एरिया में क्या होता है, ट्रांसफार्मर रहता है। वो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, वोल्टेज को कम करने का। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हमको जो पढ़ाई करना है वो हम 7th चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। Step up, how the step up transformer work, how the step down transformer works, this will study in alternating current। यहाँ पर हमको जस्ट मालूम रहना है व्हाट इज द पावर लॉस और पावर लॉस को कम कैसे किया जाता है। तो पावर लॉस को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका पावर क्या होगा, लॉस कम हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन हमने देखा है इसका आज के कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में। तो पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, ये इक्वेशन हमको कहाँ से मिला, कल हमने पावर का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हम पी सी ले लेंगे और आर सी ले लेंगे। सो व्हाट इज पी सी, पावर डिसिपेटेड in transmission cable। What is RC? It is the resistance of the transmission cable। What is I? I is the current flowing through the transmission cable। So with this first equation we got PC is equal to I square RC। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि P क्या है, पावर है,
जो ट्रांसफ़र करना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर से, और I अमाउंट ऑफ करंट हैज़ टू बी पास्ड विथ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और V इज द पोटेंशियल। जब V पोटेंशियल है, R रेजिस्टेंस है, I करंट है, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू I। From this relation, what is I? Send this V to second side, it will become P by V. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, आई का वैल्यू क्या है, पी बाई वी, सो इट विल बिकम पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू आर सी। सो हमें क्या मालूम पड़ रहा है, वी स्क्वायर इज इन डिनोमिनेटर। सो वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो क्या मतलब है इसका, पोटेंशियल अगर ज़्यादा रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो में हो गया। सेकेंड वीडियो में हम उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे।